Yes, good afternoon to all, and welcome to the IP class. So I hope that you all are well, and let's first start with the attendance from 11A. Anyone? Rabneet and Harsimrat. 11B. Okay, Parul. Sorry. And from 11C. Yes. ये सुमित तुम्हारा कौन सा सेक्शन है? सुमित कुमार. Okay, thank you. So last time we were working with the SQL, and we have basically discussed with the file system, and then we looked upon the disadvantages of the file system, and we discussed the few of the uh, features that are basically covered in DBMS. Clear? So tomorrow we have PT1. Clear? That is what is the syllabus for that? Syllabus पता है सभी को for PT1? Introduction to Python. Yes, introduction to Python. Python. Yes, तो introduction to Python पढ़ लिए चेतन? आज पढ़ूंगा सर. Okay. Yes, Samardeep has raised the hand. Yes. सर नेट इशू है, लोअर ही नहीं हो रहा. Oh, कोई बात ठीक ठीक. So with regard to your test on tomorrow, let's discuss few of the questions. So first we'll write a program to calculate the EMI. So let's say who's ready with the EMI question. Calculate the monthly EMI. Okay. Yes, anyone who's ready with the procedure, how will be working with this calculating the EMI को calculate कैसे करेंगे? Yes. ओ भाई प्रोसीजर तो बता दो कैसे कैलकुलेट करेंगे. Yes, Samanpreet. सर पहले हम अमाउंट इनपुट करवाएंगे, फिर उस पर जो रेट है और जो टाइम है. हाँ. सर फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो रेट और टाइम है उससे हम एक मंथ के हिसाब से मतलब कर लेंगे. वो ईयर में होगा तो उससे मंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें एक मंथ का EMI निकालना है. ठीक है. So let us try this one out. So one is principal, second is rate,
third is time, okay. Yes, Amanpreet, आप बताओ, how will be converting this rate into monthly? Monthly में कैसे convert करेंगे? Yes, yes, Chetandeep, Chetan, not Chetandeep, only Chetan. सर पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे, कौन सा वाला सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो जो मतलब इंटरेस्ट आएगा उसको टोटल वैल्यू के साथ हम पहले ऐड कर लेंगे, और जो हमारा रेट है, रेट कह रहा हूँ, जितने पीरियड के लिए हमने उसको लिया है उसको 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही था कुछ सर। नहीं नहीं बेटा, मेरा क्वेश्चन सुनो। अभी 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 इसने समनप्रीत ने बताया कि एक हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, एक रेट हो गया, एक टाइम का रेट। जो होता है हमारा, दैट इज बेसिकली एनुअल रेट, हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमने इसको मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सर ये तो लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले करना हो तो पहले चलो लास्ट में कर 12 से कर लेंगे। यार तो तुम दो आंसर, तरीके हैं, क्या कर रहे हाँ हैं? बताओ कैसे तरीके। कैसे करेंगे? तो मेरे को लास्ट वाला आता है, पहले वाला नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ। चलो चलो ठीक है, लेट्स ट्राई समवन एल्स हु इज रेडी विद दिस। यस, जसमीत कौर। Sir, we'll divide it by 12. Yes, rate, you see here, rate is R is equal to R, rate is R is divided by 12 and multiplied by 100। ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कोई बता सकता है? Why we multiply this by 100? Yes, Samanpreet. सर जो रेट होता है उसकी परसेंटेज को हटाने के लिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा समनप्रीत, दूसरा मेरे को बताओ, ये अब ये टाइम को हम मंथली बेसिस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो टाइम जितना भी होगा उसे 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, वेरी गुड। सो टाइम इज इक्वल टू टाइम इनटू 12। सर डिफरेंट डिफरेंट करने से अच्छा है एक बार ही कर लेते हैं। क्या? एक बार लास्ट वाले रिजल्ट को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर भी आंसर आ रहा है। चलो, इसका फार्मूला जो है मैंने लिखा हुआ है, दैट इज दिस, इट्स फार्मूला इज P इनटू R इनटू पावर ऑफ 1 प्लस R 1 plus R raised to power time, and divided by power of 1 plus R raised to power T minus 1। ठीक है जी। And now let's try print the EMI cost and run this one. Let's say principal amount is 10,000, rate is 10%, and 2 is the years. We have 2 years. So about 461 rupees you will have to pay monthly if you take 10,000 as loan for period of 2 years at the rate of 10%. Okay. So yes, clear है सभी को? Okay जी, everyone says it's okay now. Yes. So we have a list of programs that we have just see the list of the programs that we have.
clear एक, and also please look at your syllabus also, you know the syllabus, there are certain changes in the syllabus. check कर लिए सभी ने syllabus अपना? So please bhai, I have uploaded the syllabus on the Google Classroom also. Clear, just go through your syllabus also. Just try to open the syllabus. Yes, चेतन दिखाई दे रहा है syllabus? सर फिलहाल तो ब्लैंक दिख रहा है मेरे को। Yes, now this is the syllabus you आ have. गया सर। Clear, इस syllabus में look at the syllabus closely and tell me what are the changes in this. Yes, दिखाई दे रहा है चेतन? दिख रहा है सर। बताओ क्या चेंज है इस सिलेबस में? सर नंपाई नहीं है। Yes. NumPy गायब है। So first point is that NumPy has been removed from the syllabus, and it has been converted into two terms. Term one, and which consists of introduction to computer system. This is the introduction to computer system. We discussed and on last day also that it's just very elementary sort of topics are there, primary and secondary memory, and now input and output and types of softwares. So with regard to your introduction to Python, this is the syllabus that you have, introduction to Python. And then we were having certain, this is the practical bifurcation. The Python will consist of 10 marks in practical. The program will be there based on Python. Then the practical file is of 3 marks and Viva is of 2 marks for term 1. And these are the few of the programs. And I think most of the program you are familiar with. To print the highest and the lowest value in dictionaries. Yes, Chetan, इसको कर सकते हो? Yes, let's try this one. डिक्शनरी बना लो और दो वेरिएबल्स ही यूज करनी है आपको, एक में मैक्स लगा लेना फंक्शन, एक में मिन लगा लेना। चलो ठीक है, करके देखते हैं इसको। Let's say we have a dictionary and we जैसे क्या रख लें हम इसमें, मार्क्स रख देते हैं, ठीक है। Let's say we have name of so the students have their corresponding marks. Yes, how you will find the maximum marks from this dictionary? Yes, anyone? Maximum, and then we will switch to the minimum case. The other case that we have, that you have to find the maximum and the minimum value. ट्रेंड ट्रायल करें। हाँ जी, आंसर चाहिए आपको, हिट एंड ट्रायल करें कि पक्का आंसर चाहिए?
क्या चाहिए? हो जाएगा? Yes, any idea how to find the maximum value from the dictionary? Sir, we can use maximum and minimum function. Let's move to the this. So we'll this is the dictionary one, and let's say we apply the max function over there. Dictionary object has no max method like this. ये तो आपने जैसे numpy में लगाते हैं वैसे लगा दिया। हाँ, मैक्स के अंदर रख के देखो सर। yes. Try to solve this question and send me the solution. How you will be working out to find out the maximum value in the dictionary. We can think of working on a loop also. मैक्स फंक्शन से हो सकता है max- सर, Hmm? मैक्स से होगा सर। बताओ कैसे हो? Yes, Samardeep. सर अगर हम मैक्स डिक्शनरी डॉट वैल्यूज मतलब वैल्यूज के साथ हम वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ होगा। So write the code and send me the WhatsApp. Yes, Samanpreet is ready. Yes, Samanpreet. कोई भी हाईएस्ट के लिए h इज इक्वल टू मैक्स डिक्ट डॉट वैल्यूज, और सर उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर वो जो है उसको भी ब्रैकेट में कर देना। हाँ, बोलना, फिर से बोलना एक बार, क्या बोला आपने? सर h इज इक्वल टू मैक्स फिर ब्रैकेट में डिक्ट डॉट वैल्यूज, सर वैल्यूज हाँ जी सर यही है। Yes. So this is how we can deal with the values part, and similarly we can deal with the keys part also. ठीक है? So with the help of this, if we use here the keys method, we can deal with the keys also. And if we have to find out the minimum value, so this is just the use of it. Yes, well done, someone breathe. So let's find some other programs from that list. So create a dictionary of students to store names and the marks obtained in 5 subjects. Create a dictionary of students to store names and marks obtained in 5 subjects. तो पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? Who will interpret the meaning of this question? How we have to proceed in this question? Yes, raise your hands. Who is first? Tell me the what has been asked in this question. पूछा क्या है इसमें? And then how we will proceed in this question? हाँ जी, yes, first Chetan.
सर क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि हमें डिक्शनरी बनानी है स्टूडेंट्स की, उनके नेम के साथ उनके मार्क्स बताने हैं जो 5 सब्जेक्ट में उनके आए हैं। तो सर हम यहाँ पे डिक्शनरी इन डिक्शनरी वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, शुरू बनाना शुरू कर दो प्रोग्राम। यस हर्षमीत। मेरा पाइथन ही नहीं खुल रहा मेरा। तो कोई बात नहीं, कॉपी तो खुली हुई है, कॉपी खोल के रखा करो, कॉपी पे लिख दो जल्दी जल्दी एंड सेंड मी दी व्हाट्सएप। यस हर्षमीत। हाँ जी सर, सेम ही प्रोसीजर था मेरा भी, मैं अभी आपको सेंड करता हूँ लिखकर। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स का हम नेम स्टोर करेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी कीपिंग हियर। सब्जेक्ट्स तो हमें बता दिए दैट वी हैव बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डाटा विल बी स्टोरिंग हियर। सर हर स्टूडेंट के लिए एक डिक्शनरी बना सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कितने रखेंगे भाई हम इसके अंदर, हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी कीपिंग हियर। एक सर दो मैंने कोई मेंशन तो किया नहीं है, तो फिर क्या यूजर करेंगे के इसके लिए, मेंशन नहीं मुताबिक किया कर तो लेंगे। व्हाट शुड वी डू फॉर दिस वन। सर कई अप्रोच हो सकती हैं, हम पहले उससे मांग सकते हैं कि कितने स्टूडेंट का बनाना है, या फिर खुद डिसाइड कर सकते हैं, या फिर चलो एक ही स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ डिक्शनरी हमारे पास किस तरह की बननी चाहिए। जैसे जैसे अगर हमने स्टूडेंट रख लिया इसका नाम क्लियर, तो जैसे जब हम इसके अंदर फर्स्ट एंट्री करेंगे, लेट्स से फर्स्ट स्टूडेंट का नाम है हरप्रीत, ठीक है, तो हरप्रीत के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं लाइक दिस, कुछ भी ले लो एंट्रीज आप, ओके। और जो नेक्स्ट स्टूडेंट है लाइक ठीक है, तो इस तरह की बननी चाहिए डिक्शनरी या कुछ और बनना चाहिए। इस सब्जेक्ट्स के 5 सब्जेक्ट्स बताने हैं हमें। हाँ तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए ना हमने, जो पहला सब्जेक्ट में तो की 5 वैल्यू है हो। फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सर मैं कुछ और सोच रहा था कि हर सब्जेक्ट के लिए की और वैल्यू बनाते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलो ठीक है, वट एवर दी मैकेनिज्म यू हैव, वर्क ऑन दैट। चलो इसके लिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यस एनीवन हु नोस, ऑल बी स्टार्टिंग दिस वन। यस समरदीप। सर एक तो ब्लैंक डिक्शनरी बना लेंगे पहले। सो दिस इज दी ब्लैंक डिक्शनरी भी है। सर उसके बाद वी कैन इनपुट के कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। ओके यस नेक्स्ट। सर फिर एक लूप रन करते हैं जैसे फॉर आई इन रेंज एन। या हम इसको कर सकते हैं 0 to, let's say 0 to n, n कर दो तब भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। स्टूडेंट का नेम एंटर करवाते हैं और उसके बाद एक अलग लूप चलाएंगे, जे लूप। जे लूप किस लिए चलाएंगे। सो जैसे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है ना, तो फिर सब्जेक्ट्स के मार्क्स है ना, तो एक एक सब्जेक्ट का एंटर करवाने के लिए। चलो कर देते हैं ऐसे, फॉर जे इन रेंज 0 to 5
क्या करेंगे आप? सर मार्क्स इनपुट करवा लेते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स। ये हमें एक फिर एक लिस्ट लेके हम एक अपेंड करवा लेते हैं, लाइक वी पुट इन द वैल्यूज यस सर। द लिस्ट। एक लिस्ट ले लें यहाँ पे। सर मैंने जे लूप के बाद अपेंड करवा दिया था। लिस्ट पहले हमें यहाँ पे इनपुट करने पड़ेंगे मार्क्स एंड maybe don't know exactly we are moving in the right direction or not. Marks and let's say we see the marks are ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या था हमारे पास? फाइनली वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस लूप and here we have to say that student name is equal to list one। दो स्टूडेंट्स के लिए ट्राई करके देखते हैं। print so enter the student number is 2, name is Navdeep, marks is so they asking again the second name so yes, so we have been successfully been able to create a dictionary with students and their corresponding marks। वही मैकेनिज्म रखा जो हमने द मैकेनिज्म दैट वी हैव बेसिकली यूज्ड फॉर जो हमने स्टेट एंड कैपिटल के अगेंस्ट किया था। ठीक है, दैट यू हैव टू enter first is the capitals and then their first you have to enter the states and then you have to assign the their capitals to। okay, so the mechanism is what mechanism we have used here, you see here कि सबसे पहले हमने क्या किया, we have asked the user to how many students we want to input, फिर हमने एक लूप लगा दी, फिर सबसे पहले हमने नेम इनपुट करवा लिया बिकॉज हमें मार्क्स एक मार्क्स नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल मार्क्स चाहिए। तो मल्टीपल मार्क्स के लिए हमें न्यू लिस्ट चाहिए, तो ये हमने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर ली। इसके अंदर हमने 5 जो भी स्टूडेंट हमने एंटर किया उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर दिए एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, वो जो लिस्ट है वो कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट को असाइन कर दी। जैसे पहले स्टूडेंट को जो मार्क्स आपने इनपुट किए वो पहले स्टूडेंट को असाइन हो जाए, फिर जो दूसरा स्टूडेंट आएगा उसको फिर से जो नए मार्क्स होंगे वो उसको असाइन हो जाए। तो लिस्ट कंप्लीट की कंप्लीट पूरी लिस्ट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को असाइन हो जाएगी एंड देन वी हैव बेसिकली डिस्प्लेड दिस डिक्शनरी एज ए रिजल्ट। yes, any question on this?
So few students might have applied a different method, and we have worked with this method. Yes, और किसी के पास कोई और मैकेनिज्म आता है, प्लीज ट्राई टू, दिस इज, आई हैव सीन दैट दी जो हमारे पास था वो कैपिटल वाला था, स्टेट एंड कैपिटल. So if you look at, there are number of solutions are there with the same question. But actually मेरे को ये वाला मैकेनिज्म जो है वो easiest मैकेनिज्म लगा है, और it's easy to understand from my perspective. Maybe it's the same in your perspective and you may have a different logic also. Yes, someone please clear है ये idea कैसे हुआ, ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है? Yes, sir. तो स्टेप बाय स्टेप समझो इसको. पहले हमने डिसाइड किया कि हमें ब्लैंक डिक्शनरी ले ली, फिर हमने कितने स्टूडेंट्स चाहिए, फिर एक हमने ये आउटर मोस्ट लूप है जिसमें दैट विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी हैव इनपुटेड द नेम ऑफ दैट वेरी फर्स्ट स्टूडेंट. फिर लिस्ट हमने ली है क्योंकि वी वांट टू स्टोर दी मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. तो ये 5 मार्क्स के हमने सब्जेक्ट इनपुट कर लिए, और साथ साथ में हमने लिस्ट में क्या करते गए, एक एक करके अपेंड करते गए. दिस इज हाउ यू क्रिएट ए लिस्ट. और बाद में पूरी की पूरी लिस्ट हमने उस नेम के कोरस्पॉन्डिंग असाइन कर दी, एंड लास्ट में हमने उसको क्या कर लिया, वी हैव प्रिंटेड दैट. सो यू हैव the other programs also in the list, like a dictionary to store the names of states and their caps. So this is sort of a similar program that we have done. So to print the number of occurrences of a given alphabet in a string. ठीक है, चलो एक लास्ट पे ये वाला प्रोग्राम ट्राई कर लेते हैं, एंड लेट्स यूज जस्ट द आइडिया ऑन दिस. एक हम स्ट्रिंग इनपुट करवा लेते हैं. We ask the user to input a string. So who will take the lead in solving this question? So string we have inputted. How we will proceed further? सर क्वेश्चन रिपीट करोगे एक बार? Basically, इस क्वेश्चन में क्या है? You see here, this is a program to print the number of occurrences of a given alphabet in a string. तो एक हम इसको अल्फाबेट भी बताएंगे of a given alphabet. ठीक है. So basically नो द सेकंड, फर्स्ट हमने इनपुट कर दिया ये, अब दूसरा हम इसमें अल्फाबेट भी इनपुट करेंगे, आई थिंक, of a given alphabet. So let's say so other than someone else wants to make it try here. Yes, we have Jasmeet, Ravneet, Sumit, Harshmeet, Rahul, and Manjot Singh also, and most of you have basically switched off your camera. Yes, Ravneet, camera on kar lo beta, camera. Sir, I have sent you an application for that. Okay, okay. चलो भाई. सर मैंने पहले स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, लोअर फंक्शन लगा के. हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है. नेक्स्ट सर उसके बाद काउंट फंक्शन के साथ सर काउंट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट काउंट और पैरेंथेसिस में अल्फा लिख दिया है, एंड क्या फिर किया प्रिंट आपने? सेट करा लिया. बोलना फिर सर, से ये count- स्टेट. हाँ. सर एक वेरिएबल ले लिया है काउंट, हम्म. सर उसके आगे लिख दिया है कि जो भी मैं str, काउंट इज इक्वल टू और क्या? सर str डॉट काउंट फंक्शन लगा दिया ना, उसके पैरेंथेसिस में अल्फा दे दिया वैल्यू जो भी हमें अल्फाबेट काउंट करना है. लाइक दिस. यस सर. सर फिर चलो. प्रिंट करवा लिया कि अल्फाबेट करके. कुछ भी नाम रख लेते, एबीसी रख लेते हैं इसका. तो काउंट मेथड तो मेरे को लगता है कोई है ही नहीं ऐसा मेथड. बट सर मेरा तो आंसर आ गया, ट्राई कर लो इतना. एबीसी. चलो कोई बात नहीं. मे बी एंटर द स्ट्रिंग. So let's say we want to search the alphabet A. Yes, and it's working. A कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार ही आ रहा है. ठीक है, कोई और सर्च करके देख लेते हैं इसमें से.
we enter string is, let's say, Cambridge. Okay, and let's say we search n. So n is occurring 3 times. Okay, it's fine, it's working. So count method is there. So now on string we have applied the count method, and we have passed the string from which we want to basically which character we want to count from this string. Yes, good, Ramneet. So similarly, you can try it out with the rest of the programs also in the list. Almost we have done all the programs. Multiples hai, vowels hai, to count the number of vowels in the string. चलो कि ये भी कर लेते हैं. That's the final question of the day, to count the. So string तो हम यही रख लेते हैं. The string, that is whatever the string is entered by the user. Okay, next. How we will proceed next? So Samardeep is ready. Yes, Samardeep. सर इसमें भी मैंने लूप से किया था सर. ये काउंट इक्वल टू 0 लगा लो पहले. सर कोई भी एक वेरिएबल ले ले. यस सर. काउंट इन क्या चलाएंगे? लेंथ ऑफ द वेरिएबल तक चलानी है हमें. सर सीधे ही मैंने str लिख लो, वो भी चल जाएगा. हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सीधे str से भी चल जाएगी, ऐसा कोई इशू. ठीक है, वैल्यू. अच्छा 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 अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो. Remove everything like this and str ही ले लेते हैं सीधा ही. ठीक है जी. हाँ जी, नेक्स्ट. सर इसके बाद ले लो इफ वैल्यू इन, और सर स्क्वायर ब्रैकेट्स में AEIOU लिखने हैं, दोनों कैपिटल में और लोअर केस में और अपर केस में. अच्छा जी. स्ट्रिंग वैल्यू. वैल्यू तो ये कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में कंपेयर करना है. वैल्यू इन हाँ सर वैसे भी चलेगी. और AEIOU सारे लिखेंगे एक तरफ. एक ए कॉमा. यस सर. चलो स्मॉल ही रख लेते हैं अभी. डू विद दिस मच टेस्टिंग. IOU. Okay. So we say सर इसके बाद count equal to count. काउंट. यस. print count. Okay. So ये ऐसे नहीं हम रख सकते, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा. सर इन वाला फंक्शन यूज कर लो. हाँ जी, हाँ इन हाँ वाला सर, रख लेते हैं. If वाला value कर लो. in. मेंबरशिप लगा देते हैं. So 7 basically are there. So 1 2 3 1 2 3 4 5 6. और कैपिटल भी इसने कर लिया मेरे हिसाब से काउंट. सर आपने 1+ लगाया. हाँ 1+ करके- लगाया शायद, इसलिए तो नहीं. क्या क्या लगाया? 1+ लगाया, 0 लगा के देखो सर.
तो 0 से शुरू किया है, 0 से शुरू किया है। सो 1 2 देखो पहले 2 आ गए, ये 3 ये आ गए, 7 ही है, 7 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए फिर से? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 एंड 6। कैपिटल आई को कंप्लीट काउंट करें तो ये हो रहा है। सो दैट्स सर फाइन। ओ और यू को भी काउंट किया है ना इसने लास्ट में। कंट्री में दो वो वाला है, ओ एंड यू। अच्छा 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 अच्छा। सर नहीं किया काउंट उसने। हाँ 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 हाँ, नहीं उसने कैपिटल को नहीं किया, मैं यू को कंसीडर नहीं कर रहा था। आई वाज नॉट काउंटिंग दिस। ठीक है। सो अगर हमें ये भी चाहिए तो वो ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। यू जस्ट ट्राई दिस वन, कॉमा अगर हम कैपिटल आई अकेला रख देते हैं। So, clear, so the number will go to it. Yes, it's fine. So I think almost all the programs we have tried from the list. ठीक है, एक बार पढ़ लेना जो भी आपका सिलेबस है. If you still have some doubts, so we can take up. एक बार सिलेबस देख लेना आप लोग. You can look at the topics. ठीक है, प्रोग्राम आएंगे आपको, जहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू दिस बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है हमारे पास, फिर लूपिंग आ गई हमारे पास, फिर हमारे पास एक वो था ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट आल्सो, देन द लिस्ट और डिक्शनरी. सो ये दो मेजर टॉपिक है हमारे पास, लिस्ट, डिक्शनरी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड द बेसिक्स ऑफ पाइथन विद डाटा टाइप्स. ओके, सो ठीक है, कल एक बार इसको देख लेना अगर कोई डाउट होगी. सो उसके बाद तो टेस्ट ही है हमारा. सो आई डोंट थिंक दैट कि टेस्ट से पहले दैट वी शुड गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बिग डिस्कशन. क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट होगी वी कैन टेक अप टुमारो. थैंक यू वेरी मच.